Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Law and today topic is consideration. This is the fifth topic in your unit 1. Here you can see the references. Today PPT has been made from these sources. Uh, Talking about the content of the today lecture, that is first we will study about the meaning and definition of the consideration, and then we will study about the legal rules regarding the consideration, means the characteristics of the consideration. Now moving towards the first topic, that is the consideration and the meaning. Before starting the meaning of the consideration, I would like to tell you consideration through example. Let's take an example, then we'll move towards the meaning part. uh, I have written there, P is a person agreed to sell his land for 2 lakh rupees to the Q person. एक P नाम का व्यक्ति है जो अपने लैंड को रेडी है सेल करने के लिए 2 लाख रुपीस में. किसको? Q person को. And the Q person he who is accept the offer of the P, and Q ने P के ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया है and agree to pay a 2 lakh rupees, and hence Q promise to pay 2 lakh rupees to the P person. तो P पर्सन को Q पर्सन रेडी हो गया है 2 लाख रुपीज देने के लिए in order to get land. So if you see this statement, it shows that this is a simple kind of a contract between the two party. The first party is the P, who is the offerer and who is making the offer of his land, and the Q is a person who is a acceptance, who is accepting the offer of the P, means accepting the land. And both party making a contract of selling of the land, and both party want to give something in order to attend something. कुछ देने को तैयार है and or want something in return. तो P person क्या देने को तैयार है? Land. And what he want? If he want in return 2 lakh rupees. And here Q, what the Q party want? The P party want land in return of 2 lakh rupees. तो 2 lakh rupees के बदले वो लैंड चाहती है. तो वी कैन सी दैट द Q पर्सन, जो P पर्सन है, P पर्सन बेसिकली ऑफरर हो गया. ऑफरर को हम प्रोमिसर भी कहते हैं. ऑफरर बेसिकली नोन एज प्रोमिसर. और यहाँ जो Q पर्सन है, Q पर्सन को हम प्रोमिसी कहेंगे. प्रोमिसी मीन्स एक्सेप्टर पार्टी. तो प्रोमिसी मीन्स एक्सेप्टर बिकॉज ही इज बेसिकली एक्सेप्टिंग द प्रोमिसेस. और प्रोमिसर मीन्स ही इज बेसिकली मेकिंग द ऑफर और मेकिंग द प्रोमिस, दैट इज ही इज प्रोमिसर. So we can say that the P person agreed to sell his land for rupees 2 lakh rupees to Q. तो यहाँ पर बेसिकली एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी फुलफिल होगा जब कंसिडरेशन अवेलेबल होगा. तो यहाँ पर दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ रेडी है कुछ देने के लिए, एंड वांट समथिंग इन रिटर्न, और कुछ देने के बाद कुछ चाहती है. तो व्हाट ही वांट. तो इफ यू लुक इनटू दिस स्टेटमेंट, यू कैन गेट एन आइडिया दैट here the P person get 2 lakh rupees in return of land. तो P person को जो 2 lakh rupees मिलेंगे land के बदले, this is a consideration. This is the consideration for the P party. तो P party के लिए consideration क्या है? 2 lakh rupees. And what the Q party get? Q party के लिए consideration क्या है? Land. और what he give 2 lakh rupees. तो what the Q party exactly accept, एक्चुअल में Q पार्टी को लैंड मिला है, एंड लैंड बेसिकली कंसिडरेशन फॉर द Q पार्टी. तो यहाँ दोनों पार्टीज को कुछ चीज के बदले कुछ मिला है, समथिंग इन रिटर्न मिला है, कुछ देने के बदले कुछ मिला है. और यहाँ पर दोनों पार्टीज को जो चीज रिसीव्ड हुई है, दिस इज बेसिकली अ कंसिडरेशन फॉर ईच पार्टी. दोनों के लिए P के लिए 2 लाख रुपीज कंसिडरेशन हुआ और Q के लिए लैंड कंसिडरेशन हुआ. तो दोनों पार्टी को कंसिडरेशन मिला है, एंड बोथ पार्टी हैज गिवन समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग. दोनों को कुछ मिला है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द कंसिडरेशन. एंड इन कंसिडरेशन टॉपिक वी स्टडीड टू वोकैब, दैट इज प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी. तो प्रोमिसर वो होगा जो ऑफर बनाएगा, और प्रोमिसी वो पर्सन होगा जो कि ऑफर को एक्सेप्ट करेगा. So this is all about the example, and through this example you get idea what is a consideration. So consideration को let's start with the meaning part. Something in return. Something in return is known as consideration. जब कुछ हमें रिटर्न में मिलता है, जैसे कि P पार्टी को रुपीस मिला 2 लाख रुपीस और Q पार्टी को लैंड मिला, तो समथिंग इन रिटर्न जो मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? Consideration. It can be money, it can be some kind of performance, it can be some kind of act. It depends upon the
कॉन्ट्रैक्ट की समथिंग रिटर्न आपको मनी के टर्म्स में मिल सकता है, आपको कुछ एक्शन की फॉर्म में, कुछ परफॉर्मेंस या प्रॉमिस की फॉर्म में भी आपको कोई भी कंसिडरेशन मिल सकता है. इट डज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड ऑलवेज इन अ मनी की लेवल में ही नहीं होगा. कंसिडरेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ एक्ट, परफॉर्मेंस और प्रॉमिस के फॉर्म में भी हो सकता है. आप किसी को कुछ करने के लिए कहो और उससे प्रॉमिस ले लो किसी चीज़ का, ये भी एक कंसिडरेशन हो सकता है. प्रॉमिस लेना या किसी के लिए कुछ करना इज ऑल्सो बी अ कंसिडरेशन. So consideration is an essential element in a contract without which no promise will be assumed enforceable by the law. This is the most important thing. As you know that in a previous lecture we studied that what is the essential element to form a valid contract. 11 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए. उसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन को हमने वहाँ पढ़ा था, बट इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी मोर डिटेल अबाउट द कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है. इट मीन्स दैट इफ द कंसिडरेशन इज अवेलेबल इन द कॉन्ट्रैक्ट देन कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अदरवाइज अगर कंसिडरेशन अवेलेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट को हम इनवैलिड कहेंगे और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्सेबल नहीं कर पाते हैं. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर पाएंगे. मीन्स ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनवैलिड घोषित होगा. एंड दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट द कंसिडरेशन इज वाइड. अगर कोई भी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की बनता है, मीन्स उसमें कंसिडरेशन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट को हम वाइड बोलेंगे. वाइड मीन इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, क्योंकि ये इसको एनफोर्सेबल नहीं कर सकते. एंड इट डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन और द लीगल राइट टू द पार्टी टू फुलफिल देयर प्रोमिसेस. तो कंसिडरेशन अगर नहीं है तो दोनों पार्टीज लीगली बाइंडेड नहीं होगी अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए. इसलिए कंसिडरेशन जरूरी है और कंसिडरेशन से दोनों पार्टीज लीगली बाइंडेड होगी और लॉज इसको एनफोर्सेबल कर सकता है. अदरवाइज कंसिडरेशन नहीं होगा तो इट डिफिकल्ट टू एनफोर्स बाय द लॉ, एंड बिकॉज दो बोथ पार्टी does not create any legal obligation for the fulfillment of their promises. तो बेसिकली कंसिडरेशन इज अ प्राइस पेड बाय द प्रोमिसी. कंसिडरेशन बेसिकली क्या है, एक प्राइस है. वी कैन से दैट कंसिडरेशन इज बेसिकली प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. और ये प्राइस कौन देता है, प्रोमिसी देता है. प्रोमिसी मीन्स द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द ऑफर, उसके द्वारा प्राइस दिया जाता है कंसिडरेशन का. हेयर द क्यू पर्सन इज द प्रोमिसी हु इज गिविंग द 2 लाख रुपीज टू द पर्सन पी. तो यहाँ पर क्यू पर्सन कंसिडरेशन दे रहा है 2 लाख रुपीज का, एंड पी पर्सन क्या दे रहा है कंसिडरेशन, क्यू पार्टी को लैंड दे रहा है. दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग एंड द कंसिडरेशन टॉपिक. Now moving toward the definition of the consideration. What the definition is says that a definition is explained under the 2D. 2D के अंदर कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है और कंसिडरेशन को ये कहा गया है, कंसिडरेशन बेसिकली व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब कभी भी प्रोमिसर की विश और डिजायर और वांट पर हमेशा कंसिडर डिसाइड होगा. कंसिडरेशन किसकी बेस पे डिसाइड होगा, प्रोमिसर मीन्स ऑफरर पार्टी कंसिडरेशन डिसाइड करेगी. कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, किस वे में होना चाहिए, इट ऑल डिसाइडेड बाय द प्रोमिसर. and the promisee another person is has done or abstained from doing. तो promiser basically का desire, promiser desire करेगा या want करेगा या wish करेगा consideration की, और ये consideration basically होगा कि प्रोमिसी या अदर पर्सन को, प्रोमिसी मीन्स द ऑफरर, एक्सेप्टेंस पार्टी, जो एक्सेप्टेंस पार्टी है और जो अदर पर्सन है वो इस कंसिडरेशन को पेड करेंगे प्रोमिसर को. तो यहाँ पर जो प्रोमिसर है वो कंसिडरेशन डिसाइड करेगा और यहाँ प्रोमिसी और जो अदर पर्सन, प्रोमिसी भी हो सकती है कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, उनको कुछ काम करना या कुछ द प्रॉमिस किस चीज़ का होगा, प्रॉमिस बेसिकली कुछ करना या ना करने का प्रॉमिस किया जाएगा दोनों पार्टीज के द्वारा, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी के द्वारा. और यहाँ पर जो कंसिडरेशन होगा तो कंसिडरेशन प्रोमिसी देगी प्रोमिसर को. अगर प्रोमिसी अगर कंसिडरेशन नहीं दे पा रही तो प्रोमिसी ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोमिसी एनी अदर पर्सन मीन्स द स्ट्रेंजर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज में इन्वॉल्व नहीं है, एनी स्ट्रेंजर कैन पे द कंसिडरेशन. तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन. और आई हैव रिटन हियर दिस इज मेन important, or you can say the crux of the consideration is that no consideration no contract. If there is no consideration available in the contract, there will be no contract will be formed. तो कंसिडरेशन अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, अगर कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट भी है. इट मीन्स दोनों की अवेलेबिलिटी, दोनों की प्रेजेंस जरूरी है.
तो कंसिडरेशन को हम कह सकते हैं, कंसिडरेशन बेसिकली काइंड ऑफ प्रॉमिस और द परफॉर्मेंस दैट पार्टी एक्सचेंज विद ईच अदर। एक तरह का एक कंसिडरेशन क्या है, एक प्रॉमिस है, एक तरह का परफॉर्मेंस है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को एक्सचेंज में देती है। एक पार्टी कुछ के लिए कुछ करेगी, परफॉर्मेंस करेगी, एंड इन रिटर्न दे वांट सम काइंड ऑफ अदर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम ईच अदर। तो प्रॉमिस और परफॉर्मेंस के थ्रू दोनों पार्टीज एक दूसरे को एक्सचेंज करेगी अपने प्रोफेशन, अपने परफॉर्मेंस एंड प्रॉमिस। दिस इज अ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन मनी टर्म्स में भी हो सकता है, प्रॉमिस टर्म्स में भी हो सकता है, और परफॉर्मेंस टर्म्स में भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द टाइप, डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। Now moving towards the essentials of the valid consideration. तो what are the essentials of the valid contract consideration? कंसिडरेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं? वैलिड मीन्स लीगली कंसिडरेशन। कोई कंसिडरेशन हम लीगल कब बोलेंगे, उसके कुछ एसेंशियल्स क्या होते हैं? और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज लीगल रूल्स रिगार्डिंग द कंसिडरेशन। क्या क्या लीगल रूल्स होने चाहिए किसी भी कंसिडरेशन के लिए, किसी भी कंसिडरेशन के लिए क्या क्या लीगल प्रोसीजर होना चाहिए जब कंसिडरेशन बनना चाहिए? और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है? और ये 3 टॉपिक्स जो है इसका आंसर एक ही है, दैट वी विल स्टडी इन दिस वन बाय वन। तो क्या क्या एसेंशियल्स, क्या क्या रूल्स होते हैं कंसिडरेशन के? तो पहला रूल्स क्या बोलता है? कंसिडरेशन मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन हमेशा हमेशा प्रोमिसर के डिजायर या उसकी विश और रिक्वेस्ट पे ही बनना चाहिए। कंसिडरेशन इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द who decide the consideration? Consideration is basically decided by the promisor. Promisor means offerer party. ऑफरर पार्टी ही कंसिडरेशन को डिसाइड करेगी कि कंसिडरेशन हमेशा उसकी रिक्वेस्ट, उसकी डिजायर और उसकी विश के अकॉर्डिंग ही कंसिडरेशन डिसाइड होना चाहिए। प्रोमिसर ही डिसाइड करेगा कि कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, उसकी वर्थ कितनी होगी, किस फॉर्म में होना चाहिए, एक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, किसी परफॉर्मेंस या प्रॉमिस की फॉर्म में होना चाहिए, और या अदर इट इज अ फॉर्म ऑफ मनी। तो प्रोमिसर डिसाइड करेगा कि उसके लिए कंसिडरेशन कौन सी वर्थ रखता है, क्या उसे मनी इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंड, इट बेसिकली डिपेंड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर ही डिसाइड करेगा कि कंसिडरेशन क्या होगा, ना ही ये जो बेसिकली इफ द प्रोमिसर ने अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं की है और वो अपना काम कर रहा है, मीन्स वो इफ द प्रोमिसर डू एनी काइंड ऑफ एक्ट फॉर द अदर पर्सन और द अदर पार्टी, दिस इज बेसिकली अ वॉलंटरी एक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई है प्रोमिसर के द्वारा। इफ द प्रोमिसर रिक्वेस्ट मेकिंग एनी रिक्वेस्ट, देन ओनली दिस एक्ट इज कंसिडरेशन। अदरवाइज कोई भी एक्ट प्रोमिसर करता है विदाउट मेकिंग एनी रिक्वेस्ट और डिजायर, दिस इज बेसिकली वॉलंटरी एक्ट। और वॉलंटरी एक्ट डज नॉट फॉर्म अ वैलिड कंसिडरेशन। तो अगर वॉलंटरी एक्ट अगर किया है किसी भी प्रोमिसर ने विदाउट मेकिंग एनी रिक्वेस्ट और द डिजायर, तो यहाँ पर कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा। तो वैलिड अगर कंसिडरेशन चाहिए होना है तो प्रोमिसर की रिक्वेस्ट और डिजायर होनी बहुत जरूरी। मीन्स प्रोमिसर अपनी तरफ से कंसिडरेशन डिसाइड करेगा। अगर कंसिडरेशन डिसाइड नहीं किया गया है तो दिस बेसिकली अ वॉलंटरी एक्ट, तो इट कंसिडर एज अ वॉलंटरी का एक्ट। और अगर एक्ट जो है, कोई भी काम जो है, इट्स द डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी की तरफ से कोई भी डिजायर रखी गई है कंसिडरेशन की, तो दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन हमेशा कौन डिसाइड करेगा? प्रोमिसर डिसाइड करेगा, ना ही थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी, ना ही प्रोमिस ही डिसाइड करेगी। तो कौन डिसाइड करेगा कंसिडरेशन? हमेशा प्रोमिसर करेगा। नाउ टेक एन एग्जांपल, डी कंस्ट्रक्ट अ मार्केट एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डी नाम का व्यक्ति है जिसने कि मार्केट को डेवलप किया, कंस्ट्रक्ट किया, किसके डिजायर पर, किसकी विश पर? कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ने कहा डी पर्सन को कि तुम एक मार्केट को कंस्ट्रक्ट करो। और जो उस मार्केट में रहने वाले लोग थे, बी पर्सन, और तो वहाँ के जो एक्यूपेंट, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, शॉपकीपर्स, उन्होंने जाके प्रॉमिस किया डी पर्सन को कि हम आपको कमीशन देंगे अपनी अपनी शॉप्स के सेल्स का। हमारी शॉप से जितनी भी सेल्स होंगी मैं उनके अकॉर्डिंग आपको कमीशन देंगे। तो यहाँ पर डी पर्सन को कमीशन का ऑफर भी मिल गया। देन द लेटर द बी और द अदर शॉपकीपर रिफ्यूज टू पे कमीशन टू द डी। तो यहाँ पर कुछ समय बाद क्या हुआ, बी पर्सन जो थे, जो वहाँ के शॉपकीपर्स थे, उन्होंने कमीशन देने के लिए मना कर दिया डी पर्सन को। तो डी ने क्या किया, डी फाइल अ sued for the recovery। डी ने फाइल केस कर दिया अगेंस्ट द बी पर्सन और द शॉपकीपर दैट ही हैज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ कमीशन, उसको कमीशन नहीं मिला, इसके अगेंस्ट उसने एक फाइल केस कर दिया। और कोर्ट ने क्या वर्डिंग निकला, इट वॉज हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज वाइड। कोर्ट ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट जो आप बात कर रहे हो जिसमें आपको कमीशन मिलना था, दिस बेसिकली वाइड, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। कोर्ट इसको लीगली नहीं मानती है। क्यों? इट कुड नॉट बी एनफोर्स बिकॉज इट वॉज मेड विदाउट अ कंसिडरेशन। कोर्ट ने कहा यहाँ पर भी कोई भी कंसिडरेशन डिसाइड हुआ ही नहीं था।
तो जब कंसिडरेशन था ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड ही हुआ, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ ही नहीं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मार्केट बाय द डी डज नॉट नो फॉर्म अ कंसिडरेशन। तो जो भी इन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन मार्केट का हुआ था डी के द्वारा, डी ने जो भी कंस्ट्रक्शन किया था उसमें कोई भी तरह का कंसिडरेशन था ही नहीं, इन्वॉल्व था ही नहीं, बिकॉज इट वॉज नॉट डन एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बी। क्योंकि यहाँ पर बी पर्सन के द्वारा या शॉपकीपर के द्वारा आप पर रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, ना ही आपके पर कोई डिज़ायर रखी गई थी। अगर वो बी पर्सन जो है, बी और शॉपकीपर अपनी तरफ से कोई डिज़ायर या रिक्वेस्ट रखते तब जाके इसको कंसिडरेशन मानते। अदरवाइज यहाँ पर कलेक्टर ने डिज़ायर और रिक्वेस्ट रखी थी, ना कि बी पर्सन ने। तो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट कलेक्टर और डी पर्सन के बीच में, प्रोमिसर पार्टी ने तो जस्ट आपको कमीशन देने के लिए कहा, और कमीशन देने के लिए कहा इज जस्ट द सेक ऑफ वर्ड। तो वर्ड कहा, यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं की। रिक्वेस्ट कहते हो तो तब जाके कंसिडरेशन क्रिएट होता। तो इट मीन्स दैट दिस इज वी कैन से दैट, तो यहाँ पर जो केस का वर्डिक यही निकला कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड घोषित किया गया और डी को कोई भी तरह का कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ ही नहीं था। और जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ था बेसिकली कलेक्टर और कंस्ट्रक्ट डी पर्सन के बीच में हुआ था, ना कि शॉपकीपर और डी पर्सन के बीच में हुआ था। दिस इज बेसिकली अ फेमस केस ऑफ दुर्गा प्रसाद एंड बलदेव केस का था ये। देन आई डिस्कस हियर। Moving toward the next point, that is a consideration may be moved from the promisee or another person. This is the most important thing. Consideration जो होता है means something in return जो होगा वो तो या तो promisee के behalf से मिलेगा, means promisee will pay the consideration। और अगर promisee incapable है पेने के लिए, वो पे नहीं कर पा रही या में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो the another person, the another person वो हो सकता है इज अ स्ट्रेंजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो अनदर पर्सन वो होती है जिनको स्ट्रेंजर कहा जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज नहीं होते उनको स्ट्रेंजर कहते हैं। मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, मीन्स अदर पर्सन, पार्टी पार्टी हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉल्ड एज स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर पर्सन के बिहाफ से भी कंसिडरेशन दिया जा सकता है। तो वी हियर इज मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंसिडरेशन हम थर्ड पर्सन मीन्स स्ट्रेंजर के द्वारा मिल सकता है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंसिडरेशन स्ट्रेंजर की तरफ से मिलता है तो ऐसे कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन कहा जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन कहा जाएगा। whenever the consideration is given by the stranger of the contract, this consideration is known as doctrine of constructive consideration, because this consideration is given by the third party or the stranger of the contract. A stranger to the consideration cannot sue on the court contract। जो स्ट्रेंजर होगा, स्ट्रेंजर मीन्स द थर्ड पार्टी है, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। जब स्ट्रेंजर कंसिडरेशन देगा तो स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन नॉट सी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो कंस्ट्रेंजर को कभी भी ही कांट बी एबल टू सी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी केस लीगल प्रोसीजर में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, क्योंकि उसने पेमेंट दिया है। मगर सिर्फ उसने कंसिडरेशन दिया है, ही द स्ट्रेंजर will always be involved in a consideration process but not involved in any kind of court or legal activity। कॉन्ट्रैक्ट की लीगल एक्टिविटी में सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगे, ऑफर एंड एक्सेप्टर। स्ट्रेंजर सिर्फ कंसिडरेशन दे सकता है, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग है कि कहीं कैन नॉट बी सी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में वो कोई भी लीगल प्रोसीजर में इन्वॉल्व नहीं होगा, ना ही वो कोई भी केस लड़ सकता है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। एंड देयर मस्ट बी स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन। देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन मीन्स कंसिडरेशन के लिए स्ट्रेंजर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन देने के लिए स्ट्रेंजर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, मीन्स स्ट्रेंजर कैन पे द consideration on the behalf of the promisee, but stranger cannot be the part of the contract। स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता है, बट वो सिर्फ कंसिडरेशन दे सकता है। ही कैन ओनली बी गिवन अ कंसिडरेशन बट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। This is the there I have mentioned stranger to the contract. In a general rule of the law that only the parties to the contract may be sued and be sued on the contract. This rule is known as the doctrine of the privacy of the contract। This is one of the important thing here, doctrine of the privacy of the contract। This is what it is mean। It means that कोई भी दो पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, वो दोनों ही पार्टी एक दूसरे के लिए लीगल रूल्स या लीगल
लीगली एक दूसरे के लिए कोई भी केस कोर्ट में लड़ सकते हैं, एंड दे कैन स्यू अ केस अगेंस्ट ईच अदर, और दे बोथ पार्टी कैन लीगली involve to with each other, and this rule is known as doctrine of privacy of contract. मीन्स दो पार्टी, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होगी, मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पार्टी, वही पार्टी लीगली बाइंडेड होंगी एक दूसरे के लिए, और दोनों ही पार्टी अपने कोर्ट से रिगार्डिंग कोई भी कोर्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और इस लॉ को क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Privacy of contract means relationship sustaining between parties who have entered into the contractual obligation. Means privacy of contract means सिर्फ दो ही पार्टीज इन्वॉल्व होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन दोनों ही पार्टीज लीगली बाइंडेड होंगी जो पार्टीज एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, थर्ड स्ट्रेंजर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट हम सिर्फ दो ही पार्टीज के बीच में होगा उसको बोलेंगे प्राइवेटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स दो ही पार्टीज इसमें लीगली बाइंडेड होंगी, ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस पार्टी। This is the word is used in the in this part, so that I have mentioned here. This is one of the important question that can be asked in the examination. The third important essential elements of the consideration is that the consideration may be past, present or future. This is one of the most important thing, that consideration जो है वो past भी हो सकता है, present भी हो सकता है और future भी हो सकता है। It means क्या? Consideration can be in past. अगर पास्ट प्रॉमिस के बेस पर कंसिडरेशन गिवन है, गिवन दिया गया मीन्स कंसिडरेशन आपने दिया, ऐसे चीज के लिए आपने कंसिडरेशन दिया जो पास्ट प्रॉमिस के बेस पर आपने कंसिडरेशन दिया, या आपने कोई पेमेंट किया या आपने प्राइस दिया किसी पास्ट प्रॉमिस के बेस पर, ऐसे कंसिडरेशन हम पास्ट प्रॉमिस या पास्ट कंसिडरेशन कहेंगे। दिस इज वी कैन से दैट व्हेन एन एक्ट हैड बीन डन बाय द पर्सन इन द पास्ट एट द डिजायर और द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रॉमिसर, फॉर विच द सब्सिक्वेंट प्रोसेस promise or the present promise is made, such act is treated as past consideration for the present promise। तो जब भी when act, कोई भी एक्ट पुराने टाइम पे किया गया है at the desire and the request of the promiser, और अभी आपने इसका पेमेंट किया है या आपने उसका कंसिडरेशन दिया है, ऐसे कंसिडरेशन को हम पास्ट कंसिडरेशन कहेंगे, क्योंकि जो प्रॉमिस था वो पास्ट में था, एंड दिस इज द पास्ट। और प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या हुआ? प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ कि जब प्रॉमिस भी अभी हुआ है और कंसिडरेशन भी अभी हुआ है, बोथ साइमल्टेनियसली मूव विद द प्रोमिसेस, मींस कंसिडरेशन और द प्रोमिस बोथ मूव साइमल्टेनियसली। अभी आपने कंसिडरेशन दिया, अभी आपने प्रॉमिस किया, और अभी की अभी आपने कंसिडरेशन ले लिया, दिस मीन्स दिस इज अ प्रेजेंट कंसिडरेशन। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है कैश सेल, कैश में जो भी सेल होती है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रेजेंट और एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन को हम एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी कह सकते हैं। और द सेलर, वी कैन से दैट इन अ कैश सेल द सेलर डिलीवर द आर्टिकल सोल्ड एंड द बायर साइमल्टेनियसली पे द प्राइस फॉर देम। यहाँ पर जो बायर बेसिकली जो डिलीवर सेलर होता है वो अपने आर्टिकल्स को देता है, और जैसे ही वो देता है देन द जो अदर पार्टी है मीन्स द बायर साइमल्टेनियसली उसके प्राइस को पेमेंट कर देगी। यहाँ पर कंसिडरेशन भी पेमेंट हो जाएगा। इट मीन्स बोथ, दिस इज बेसिकली प्रेजेंट कंसिडरेशन। तो फ्यूचर कंसिडरेशन क्या हुआ? फ्यूचर कंसिडरेशन इज बेसिकली पास सब्सिक्वेंटली विद द प्रॉमिस इन द फ्यूचर। यहाँ प्रॉमिस भी फ्यूचर के लिए होगा और कंसिडरेशन विल ऑल्सो बी पेड इन फ्यूचर। तो जब प्रॉमिस एंड द कंसिडरेशन विल बी गिवन इन द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर कंसिडरेशन। Moving toward the fourth point, that is a consideration need not to be adequate. This is the fourth essential legal accepted legally important element of the consideration, that is consideration need not to be adequate। consideration जो होता है, जरूरी नहीं है कि consideration हमेशा adequate हो, it must have some value। consideration हमेशा जरूरी नहीं है कि adequate हो, it should have some value in the eye of the court or in the eye of law or in the eye of promiser। promiser की नज़र में वो adequate होना चाहिए, it not need to be adequate, वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, then you can get more idea what exactly I mean to say। You can say that consideration means something for something, and here it is not necessary that something in return should be equal in value with the something in given। ज़रूरी नहीं है कि whatever we have given and in return we get the exact value।
it not necessary that something in return should be equal to the value with the something is given. Moreover, the consideration need not to be approximately equal value. जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन इक्वलेंट वैल्यू का ही हो। और यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं। पी एग्री टू सेल अ हाउस ऑफ वर्थ 5 लाख रुपीज फॉर 1 लाख। पी एक पर्सन है जो अपने घर को बेचने को तैयार है और घर की जो वर्थ है वो कितने रुपीस की है, 5 लाख रुपीस है। मगर जो पी है वो अपने घर को कितने में बेच रहा है, ही इज रेडी टू ऑफर हिज हाउस फॉर द 1 लाख रुपीज। पी कंसेंट फॉर द एग्रीमेंट वॉज फ्री। पी को कोई जो कंसेंट है, पी के जो ऑफर है वो एक फ्री है, मीन्स उसको कोई तरह का प्रेशर नहीं है। और द एग्रीमेंट इज वैलिड इन स्पाइट ऑफ द इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। यहाँ जो एग्रीमेंट हुआ है, कंसिडरेशन यहाँ बहुत कम दिया जा रहा है। एक्चुअली में इसकी वैल्यू कितनी की है, 5 लाख की। पर यहाँ पी पार्टी अपना हाउस कितने में रेडी है सेल करने के लिए, 1 लाख रुपीज में। ये शोज दैट यहाँ वर्थ तो बहुत कम मिल रहा है पी को, मगर यहाँ पर जो एक्चुअल में पी एग्री है 1 लाख रुपीज लेने को, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द वर्थ ऑफ द हाउस इज 5 लाख रुपीज एंड P is accepting the 1 लाख रुपीज, it means that consideration need not to be adequate, but it should be adequate in the eye of the ऑफरर पार्टी। ऑफर पार्टी के लिए 1 लाख रुपीज वर्थ है। जरूरी नहीं है कि उसकी वर्थ जितनी है उतनी ही उसको वर्थ मिले, बट यहाँ पी पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन होने के बावजूद भी ऐसा जो एग्रीमेंट है वो वैलिड माना जाएगा, बिकॉज पी पार्टी के लिए एडिक्वेट एडिक्वेसी उसके लिए 1 लाख रुपीज भी है, उसके लिए वो 5 लाख रुपीज इतना वर्थ नहीं करता है। और इसकी वैल्यू पी पार्टी के लिए है, देन ही इज एग्री टू सेल हिज हाउस एट 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पर कंसिडरेशन जरूरी नहीं एडिक्वेट हो, बट इट शुड हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ द promisor or the court. Now the next point is that it must be legal consideration. कंसिडरेशन की सबसे इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट और करेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि कंसिडरेशन हमेशा रियल होना चाहिए। द कंसिडरेशन मस्ट बी अ वैल्यू इन द आई ऑफ द कोर्ट, आई ऑफ द लॉ। जो कंसिडरेशन है उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए कानून की नज़र में, और इसकी वैल्यू नज़र होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट बी इल्यूजनरी, द इम्पॉसिबल एक्ट और द नॉन एग्जिस्टिंग गुड्स कैन नॉट सपोर्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। जो कंसिडरेशन होता है वो रियल होना चाहिए, मीन्स जेन्यून होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन हमेशा इम्पॉसिबल एक्ट के लिए नहीं होना चाहिए, नॉन एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए नहीं होना चाहिए, और एक हमेशा ये ऐसा काम के लिए होना चाहिए जिसकी कुछ रियल वर्थ हो और रियल वैल्यू हो। वो कुछ इसकी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कोर्ट उसको कंसिडर कर सके। तो कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जिसकी वैल्यू हो, वो कुछ इल्यूजनरी या इमेजिनेबल चीज़ों के बेस पर कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए। कंसिडरेशन के लिए कोई ना कोई रियल वर्थ होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए कोर्ट की नज़र में। नाउ द मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ पॉइंट, द सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ द वैलिड कंसिडरेशन, दैट इज द कंसिडरेशन must not be illegal, immoral, and opposed to the public policy. It means that if the consideration of the object of the agreement is illegal, immoral, and opposed to the public policy, the agreement to contract is invalid. It means that whenever the consideration of the project of the object, जब भी हम कंसिडरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट इलीगल नहीं होना चाहिए, ना ही वो इमोरल होना चाहिए, ना ही वो पब्लिक पॉलिसी को हार्म करता हुआ होना चाहिए। ऐसा एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, इनवैलिड बोलेंगे। मीन्स जो भी कंसिडरेशन होगा वो कंसिडरेशन हमेशा लीगल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, और विदाउट एनी हार्मिंग द पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए। तो कंसिडरेशन शुड नॉट बी इलीगल नहीं हो चाहिए। कंसिडरेशन हमेशा कुछ अच्छे काम के लिए, मॉरली कुछ अच्छे काम के लिए, लीगल काम के लिए और जनता को बेनिफिट करने के लिए होना चाहिए, ना कि कंसिडरेशन किसी इलीगल काम के लिए होना चाहिए। तो कंसिडरेशन की जो वर्थ है वो हमेशा, जो उसकी वैल्यू है, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लीगल होना चाहिए। तो लेट टेक एन एग्जांपल, एक्स एग्री टू पे 50,000 रुपीज टू वाई पर्सन इफ ही किल द सी पर्सन। यहाँ एक्स क्या बोल रहा है, एक्स ऑफर रख रहा है वाई पर्सन के लिए कि मैं आपको 50,000 रुपीज दूंगा अगर आपने सी पर्सन को किल किया। तो यहाँ बेसिकली दिस इज बेसिकली अ इलीगल एक्ट और मर्डर ऑफ द समवन। यहाँ कान इलीगल एक्ट करवाया जा रहा है एक्स पार्टी के द्वारा वाई पार्टी कर रही है। तो यहाँ बेसिकली दिस इज बेसिकली, और यहाँ पर जो अमाउंट है 50,000 ये इलीगल काम के लिए दिया जा रहा है, और दिस इज कंसिडरेशन इज बेसिकली a given the consideration here given is for the illegal kind of work, and this consideration is not be a
कैन नॉट फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा कंसिडरेशन जो कि कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कंसिडरेशन है वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा, और ऐसे कंसिडरेशन को हम इनवैलिड कंसिडरेशन कहेंगे, क्योंकि ये इलीगल वर्क के लिए किया जा रहा है। So this is sixth point. Now moving toward the last point, that is a consideration may be in the form of the written promise or an obstinance or the forbearance or the doing of any act. Consideration है, you can put it here the word consideration. यहाँ कंसिडर लिखा हुआ है तो आप इसको कंसिडरेशन कर लीजिएगा। कंसिडरेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न प्रॉमिस। कंसिडरेशन किसके फॉर्म में हो सकता है? आप प्रॉमिस दे रहे हो और प्रॉमिस आप रिटर्न में ले सकते हो, और आप प्रॉमिस किसी काम को ना करने के लिए ले सकते हो, आप किसी काम को करने के लिए ले सकते हो। इट टोटली डिपेंड कि कंसिडरेशन कई फॉर्म में हो सकता है। कंसिडरेशन आप किसी रिटर्न फॉर्म में प्रॉमिस के बदले ले सकते हो, कंसिडरेशन किसी काम को ना करने के लिए कर सकते हो, और कंसिडरेशन आप किसी काम को करने के लिए कर सकते हो, मीन डूइंग एन एक्ट, किसी काम को करने के लिए आप कंसिडरेशन कर सकते हो। तो कंसिडरेशन इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कैन बी आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म्स। कंसिडरेशन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। इट मीन्स अगर हम किसी काम को, अच्छे काम को करने के लिए कह रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव कंसिडरेशन, और अगर हम किसी काम को नहीं करने के लिए कह रहे हैं तो दिस इज अ नेगेटिव। मतलब अगर मैंने कहा, एक्स पर्सन ने कहा वाई पर्सन को कि मैं तुम्हें कभी कोई, मैं तुम्हें तुम्हारे काम को मैं तुम पे कोई भी केस नहीं लड़ूंगा, मीन्स आई विल नॉट फाइल एनी केस अगेंस्ट यू फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। तो वाई पर्सन, एक्स पर्सन ने प्रॉमिस किया एक वाई पर्सन को कि वो कोई भी केस नहीं लड़ेगा वाई पर्सन के लिए, मतलब कोई भी उसके अगेंस्ट केस नहीं करेगा। वाई पर्सन को, एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को कहा। तो यहाँ बेसिकली क्या हुआ, वो ना करने के लिए कह रहा है कि मतलब वो कोई भी केस नहीं करेगा बिकॉज वाई ने उसका पैसा लिया है। तो यहाँ वाई, एक्स क्या प्रॉमिस कर रहा है वाई को कि ही विल नॉट फाइल एनी केस अगेंस्ट द वाई पर्सन, और वाई पर्सन इज अ डेप्टर ऑफ द एक्स। तो एक्स का जो डेप्टर मीन्स वाई पर्सन कर्जदार है एक्स का। तो यहाँ एक्स पर्सन कहता है कि तुम मुझे 5,000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा दे देना और मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी केस नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ बेसिकली कुछ ना करने के लिए क्या हो रहा है, कंसिडरेशन दिया जा रहा है। तो कंसिडरेशन एक्स पार्टी दे रही है वाई पार्टी को। तो यू कैन ऑल्सो पुट द एग्जाम्पल ओवर हियर this to explain this point. This is all about the today lecture. Okay, my dear student, thank you.